Afghanistan, the siege of Kabul, and its implications. Hello, everyone. Welcome to an all new episode of the IBS Bangalore talk show. This is your host, Sakshi Sharma, and co-host Neha. and today we are here to talk to you all about the month old issues that we saw in Afghanistan. It's withdrew from that country and the implications of it all. Before we move ahead, my co host and I would like to welcome our speaker for this episode. Today we have with us Mr. Ankit Agarwal, an educator from Study IQ, which happens to be one of the most popular platforms for imparting educations and current affairs and geopolitics. Mr. Ankit Agarwal holds a graduation degree in economics from Delhi University and is a postgraduate in the field of public administration. He is a seasoned educator when it comes to the domain of the esteemed civil services examinations that are held in our country. With a cumulative experience of 8 years in imparting knowledge in the domains of economics, international relations and current issues, Mr. Agarwal is indeed an asset to Study IQ. Study IQ's current YouTube channel boasts of a whopping 10.6 million subscribers and is one of the most acclaimed YouTube channels in India. Welcome, Ankit sir, to the IBSB talk show, and thank you for agreeing to come to our podcast and imparting valuable knowledge to all our listeners. Thank you, Sneha and Sakshi. And I'm glad to be here at IBS Bangalore. And also let me tell you something कि जब मैंने आपका इनविटेशन देखा तो मुझे अपने चाइल्डहुड की यादें आ गई. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि मैंने अपना जो 9th and 10th है स्कूलिंग है वो बैंगलोर से किया था. एंड इनफैक्ट जो प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं ना वहाँ पर बैंगलोर में PU कॉलेज, दैट आई डिड फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज. तो जब मैं 9th क्लास में था सो दैट टाइम मैं पेइंग गेस्ट में रहता था. तो उस समय मैं बहुत मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 9th क्लास में काफी बचपन से ही मैं पेइंग गेस्ट में था और जो सीनियर्स थे उनमें से कुछ लोग IBS बैंगलोर में पढ़ा करते थे. तो पहली बार मैंने किसी MBA कॉलेज स्कूल के बारे में सुना था एंड दैट वाज IBS बैंगलोर. सो दैट्स व्हाई कि जब मैंने आपका इनविटेशन देखा तो मुझे वो सारी पिक्चर्स याद आ रहे थे एंड वन ऑफ द बिग रीजन दैट्स व्हाई आई एम हियर. थैंक यू. Okay, Thank that's you, so sir. great. Yeah. So, to start off with the episode, we would love to know a bit about your profile. What made you so interested in the domain of current affairs and geopolitics? ओके सो मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन की है UPSC की. सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स तो मेरा एक बैकग्राउंड था, मुझे बहुत अच्छा लगता था. लाइक आई यूज्ड टू लव इट. बट व्हेन आई एंटर्ड दिस प्रिपरेशन जर्नी ऑफ UPSC, उसमें आपको पता है कि जो करंट इश्यूज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए. बट दैट टाइम इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह रिलेशंस बहुत ज्यादा मुश्किल लगते थे मुझे. बट एक बार जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया एज अ प्रिपरेशन के मोड में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था. एंड आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग इंटरनेशनल इश्यूज को थोड़ा बहुत भी देखते होंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग बनता जाता है, क्योंकि शायद भारत में हम उसके बारे में उतना नहीं जानते, लेकिन एक बार धीरे धीरे जब जानने लग जाते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता है. तो वही चीज सेम मेरे साथ भी हुई कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जियोपॉलिटिक्स है, वो काफी इंटरेस्टिंग लगने लग गया. एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई जॉइंड स्टडी IQ इन 2019, उसके बाद विथ इकोनॉमिक्स आई आल्सो स्टार्टेड टेकिंग इंटरनेशनल रिलेशन एज डिफरेंट, उसमें अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं एंड करंट इश्यूज के टॉपिक्स लेने लग गया. तो दैट इज व्हाई काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था. तो उसका एक मेन कारण है दैट UPSC जर्नी दैट आई स्टार्टेड इन 2015. या So, we got to know a interesting journey of yours, which was very interesting for us and to our listeners also, we believe. Also, sir, what keeps you motivated to make the videos the way you do? Which are the resources that you refers to? And most importantly, how do you collate all that information and bring it together for us, listeners and aspirants? ओके, जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, सी एज यू मेंशन दैट आई एम हैविंग लाइक मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग. तो मैंने काफी अर्ली एज से ही लाइक जस्ट आफ्टर द कॉलेज मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था कॉलेज स्टूडेंट्स को एंड बाकी. बट स्पेशली UPSC की जर्नी में भी मैं पढ़ाया करता था, तो कई सारी चीजें थी. उसके बाद आई नेवर थॉट कि मैं कभी ऑनलाइन में आऊंगा. बट होता है कि UPSC जर्नी के दौरान 2-3 अटेम्प्ट्स देने के बाद आप कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करते हो. तो उस समय हमने कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑनलाइन में किस तरह से हम करें.
बट स्टिल लाइक उसमें उतना मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऑनलाइन आऊंगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग लाइक 2019 में somehow I got connected with the founder of Study IQ, गौरव सर। तो उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, एंड मेरा इंटरेस्ट हमेशा से टीचिंग में बहुत अच्छा रहा था। लाइक जब मैं टीच करता था, आई हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड विद एनजीओज। तो वहां पर जब पढ़ाता था तो जो सामने वाले का रेस्पॉन्स आता था वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। तो आज भी वही सिलसिला जारी है, स्पेशली क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं जैसे कि करंट इश्यूज हो गया, तो वो लगातार चेंज होता रहता है। तो यू ऑलवेज गेट टू नो समथिंग न्यू अबाउट इट। तो वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि यू ऑलवेज गेट टू नो लर्न समथिंग अबाउट इट, राइट। तो वो एक चीज है। और दूसरा, जहां तक आपने पूछा कि कहाँ से हम रिसोर्सेज जुटाते हैं, तो देखिए अगेन देयर इज नथिंग फिक्स्ड। अल्टीमेटली एक इंटरनेट एक ऐसा डोमेन है जहां पर बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इट डिपेंड्स कि किस तरह के टॉपिक्स आए हैं। ठीक है, कल के डेट में आपसे जैसे अभी रिसेंटली आपको आर्यन खान वाला पूरा मुद्दा आपने देखा होगा, तो वो एक मुद्दा आ गया था। तो अब हो सकता है कि टीवी न्यूज चैनल्स के लिए वो एक टीआरपी का मुद्दा हो, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसको हम किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फैक्टर के तौर पर हम ला सकते हैं कि एनसीबी का क्या रोल होता है, उसमें क्या पनिशमेंट होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, एंड अल्टीमेटली इस तरह से पेश किया जाता है कि कम टाइम में स्टूडेंट्स को और लिसनर्स को, एंड आपको पता है ये स्टडी आईक्यू एक ऐसा चैनल है जहां पर बाकी जो आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आजकल एक ऑल्टरनेटिव मीडिया के सोर्स पर देखा जाता है। तो वो हमारी कोशिश होती है कि बहुत ही कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर वही हम करते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट मेन मोटिवेशन फैक्टर। थैंक यू। वाओ। तो ठीक है, उसके बाद we would like to know that could you please give our listeners a brief timeline or a brief backdrop of the entire Taliban issue? मतलब how did they come into existence, how did they rise to power initially, and how were they displaced back then? ओके, सो जहां तक अफगानिस्तान क्राइसिस की बात है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली इसको थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना होगा। जब इसका हिस्ट्री किस तरह का रहा था, ज्योग्राफी क्या है इसका, एंड जो एथनिक डिविजन्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो सारी चीजें जब आपको जानकारी मिलेगी तब आप इस पूरे क्राइसिस के जो जो कोर होता है तब आप उसको समझ पाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर से लेकर उसके बाद रिसेंट टाइम्स में ब्रिटेन हो गया, उसके बाद यूएस हो गया अभी लेटेस्ट, ये सब इधर आए, यहाँ पर इसको कॉन्कर करने की कोशिश की। तो ऐसा क्या है अफगानिस्तान के अंदर, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इफ यू सी जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जस्ट आप मैप खोलिए और अफगानिस्तान की जो लोकेशन है उसको देखने की, समझने की कोशिश करिए। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है वो। वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो ईरान है, साउथ और ईस्टर्न साइड में पूरा पाकिस्तान से घिरा हुआ है, नदर्न साइड में आप देखोगे तो जो पूरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो वहां पर कोई पोर्ट भी नहीं है, बंदरगाह नहीं है, बट स्टिल ऐसा क्या है उस देश के अंदर, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ऐसा क्या है जिसकी वजह से अलेक्जेंडर से लेकर अभी तक हर कोई उसको कॉन्कर करने की कोशिश करता है। और इसका जो एक मेन कारण है वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखिए, अगर किसी को भी यूरोप से या फिर कहीं से भी अगर भारत की तरफ आना है, साउथ एशिया की तरफ आना है, पाकिस्तान भारत, उसमें तो नहीं था पाकिस्तान, लेकिन हाँ पाकिस्तान भारत बांग्लादेश, अगर इधर एंटर करना है तो उसको अफगानिस्तान से होकर ही आना पड़ेगा। तो वो जो ज्योग्राफी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती थी अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से। और इनफैक्ट आप कई बार सुनते होंगे कि इट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर? तो इसका एक दो तीन चीजें अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको समझ में आएगा कि इसको अटैक करना तो आसान है, इट इज इजी टू इन्वेड। कोई भी चाहे बाहरी ताकतें, यूएस, ब्रिटेन, कोई भी अटैक करना चाहता है तो वो आराम से अटैक कर सकता है उसके ऊपर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर, मतलब कि उसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इट इज नॉट इजी, राइट। और तीसरा इसमें यह है कि इट इज इम्पॉसिबल टू रूल, मतलब कि आप वहां पर रूल नहीं कर पाओगे। तो ये जो तीन फैक्टर है ना, इट इज इजी टू इन्वेड, इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्कर एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रूल, इसकी वजह से ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स माना जाता है। जो भी यहाँ पर आने की कोशिश किया है वो हमेशा उसको लॉस ही हुआ है किसी ना किसी प्रकार का, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या फिर ह्यूमन लॉस के टर्म्स में हो। तो ये सारी चीजें, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगेन ज्योग्राफी अगर आप देखोगे अफगानिस्तान की, तो आपको बीच में एक हिंदू कुश माउंटेन रेंज देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली डिवाइड करता है नॉर्थ अफगानिस्तान और साउथ अफगानिस्तान में। तो कोई भी जो बाहरी ताकतें वहां पर आती हैं, फॉरेन रूल करने के लिए आते हैं,
तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है वहां पर किसी भी चीज को वहां के जो रास्ते हैं उसको अटैक करने के लिए, वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वहां पर उसको विन नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर एथनिक डिवीजन। बेसिकली अगर आप अफगानिस्तान में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो जो एथनिक डिवीजन है वहां पर, चाहे पश्तून हो गए, तजिक हो गए, या फिर हजाराज हो गए, माइनॉरिटीज या जो भी आपको देखने को मिलेंगे, फॉरेन रूल के समय वो लोग क्या करते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और एक साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही फॉरेन रूल वहां से जाती है तो वो आपस में ही अगेन जो है फाइट करना स्टार्ट कर देंगे सुप्रीमेसी के लिए, कौन वहां पर रूल करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन आपको यूजुअली जो है अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके बाद अब मैं धीरे धीरे आता हूं कि आई होप कि एक जो नेचर है वो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि Yes, yes. बेसिकली अफगानिस्तान में क्यों इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्यों ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं। इसके अलावा अक्सर आप सुनते होंगे कि वहां पर ग्रेट गेम कहा जाता था। ये ग्रेट गेम क्या है? ग्रेट गेम को आप समझोगे तो इसकी वजह से आप धीरे धीरे फिर समझ पाओगे कि अफगानिस्तान कैसे आजाद हुआ। तो ग्रेट गेम बेसिकली क्या था कि उस समय ब्रिटेन एक बहुत बड़ी महाशक्ति हुआ करती थी। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करूं, राइट, तो वो ग्रेट गेम बेसिकली क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी था इन द सेंट्रल एशियन रीजन, जो मैंने बताया ना ऊपर, तजिकिस्तान और ये जो भी देश थे आपके। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी है कि कौन उसको रूल करेगा, देखेगा उसको, तो वो उसी को कहा जाता था ग्रेट गेम। एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में, राइट। तो ब्रिटिश एम्पायर और एक तरफ रशियन एम्पायर। अब रशियन एम्पायर अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान का जो नदन वाला पार्ट है, जितने भी देश मैंने आपको बताया, तजिकिस्तान और ये जितने भी, वहां तक ये फैले हुए थे और रशिया चाहता था कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ब्रिटेन का देखोगे तो ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी जो कि पाकिस्तान तक रूल कर रही थी। तो ब्रिटिश चाहती थे कि वो भी अफगानिस्तान को एक प्रकार से अपने हाथ में ले ले, एक बफर जोन टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करे कि कोई भी, अगर रशिया है वो भी एंटर करना चाहेगा भारत के अंदर, तो वो एक बफर जोन बना रहेगा अफगानिस्तान एक प्रकार से। तो दोनों लोग में एक प्रकार से फाइट देखने को मिलता था। ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि इनफैक्ट मैं आपको एक इसको रिलेट करना चाहता हूँ। रिसेंटली आई थिंक शायद 2 साल हो गए हैं उस मूवी को आए हुए। अक्षय कुमार की मूवी थी ना, वो कौन सी, केसरी, आई एम श्योर याद होगा आपको। Yes, sir. तो जो केसरी मूवी था वो क्या था बेसिकली, अगेन वो जो सिख रेजिमेंट था वो ब्रिटिश एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। तो दैट बैटल ऑफ सारागरी वो फाइट हुआ था उस समय। तो अगेन तो ब्रिटेन ने क्या किया था, एक प्रकार का बफर जोन बना दिया था अफगानिस्तान के अंदर, उसको कैप्चर करके। और वहां पर भी ब्रिटेन को काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे। लगातार वहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं, पश्तून हो गए, वो अटैक करते रहते थे। और अल्टीमेटली लॉस किसका होता था? वो इंडियंस का ही लॉस होता था, क्योंकि इंडियंस ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ते थे। तो ये सिचुएशन आपको केसरी मूवी के अंदर थोड़ा बहुत झलक देखने को मिलती है। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है कि इसका इमरजेंस कब हुआ, तो एक पर्सन ध्यान में रखिएगा, दैट इज अहमद शाह दुर्रानी। आई एम श्योर की हिस्ट्री में कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो 1747 में यहाँ पर ये जो पर्सन है अहमद शाह दुर्रानी, उसने जितने भी पश्तून ट्राइब हैं, पश्तून ट्राइब बेसिकली आप यूं समझिए कि आज के डेट में जब हम तालिबान की बात करते हैं तो उसमें मेजोरिटी आपको पश्तून ट्राइब ही देखने को मिलेगी। तो ये जो पश्तून ट्राइब को एक साथ यूनिफाई करने की कोशिश किया अहमद शाह दुरानी ने 1747 के आसपास। और एक प्रकार का आज का जो अफगानिस्तान जो हम देखते हैं ना, वो 1747 से ही आपको लगभग देखने को मिलेगा, उसका जो ज्योग्राफिकल रीजन्स वगैरह है। तो उसी समय क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन है वो बफर जोन बना दिया था अफगानिस्तान के ऊपर, कैप्चर करके उसको रूल करने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे एंग्लो अफगान वॉर देखने को मिलते हैं ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच में। सो एक आई थिंक शायद 1940 में एक पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। उसके बाद आई थिंक शायद 1880 के आसपास हुआ था एक दूसरा एंग्लो अफगान वॉर। और फाइनली जो एंग्लो अफगान वॉर होता है थर्ड वाला, दैट इज डिसाइसिव, इट वाज इन 1919 में। बहुत ही छोटे समय के लिए हुआ था ये। एंड वो 1919 ही एक प्रकार से अफगानिस्तान के लिए इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। फाइनली जो ब्रिटेन है वो पीछे हट गया और वहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर जो ट्राइबल पीपल हैं वही रूल करने लग गए थे। तो इस तरह से क्या होता है कि अल्टीमेटली 1919 में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंस हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसको चलाने की किसी प्रकार से कोशिश की जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 अगर आता है तो वो किसी का साइड नहीं लेता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आज के डेट में अगर आप देखो तो काबुल वगैरह हम देखते हैं, काबुल यूनिवर्सिटी पहले काफी फेमस हुआ करता था वो। उसका कारण ये था कि 1964 में एक किंग था वहां का, अफगानिस्तान का, जिसका नाम है किंग जाहिर शाह। किंग जाहिर शाह अगर आप देखोगे तो 1964 में उसने बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की थी।
अफगानिस्तान के अंदर सोशियो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि मैं आपसे बोलूं तो अफगानिस्तान के अंदर जो जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर आएंगे, इलेक्शंस होगा वहां पर। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो काफी एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था अफगानिस्तान। अगर आप 1964 के आसपास बात करिए, जो वुमेन्स महिलाएं हैं वो जाती थी, यूनिवर्सिटीज वगैरह जा रही थी, तो वो चल रहा था करीब आई थिंक शायद 8 या 9 साल तक ये चीज चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो किंग जाहिर शाह है उसी का ही कजन है जिसका नाम है दाऊद खान। दाऊद खान क्या करता है कि अब किंग जाहिर शाह को वहां से हटा देता है 1973 में। 1973 में उसको हटाने के बाद वो रूल करने लग जाता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, अब आपको यहाँ से जो यूएसएसआर है उसकी स्टोरी पता चलेगी कि सोवियत यूनियन किस तरह से इन्वेड किया सबसे पहले, और फिर आगे चलकर हमें पता चलेगा कि तालिबान किस तरह आया। लेकिन क्या होता है कि 1973 में जो दाऊद खान है वो रूल करने लग जाता है। तो अफगानिस्तान के उसी समय क्या होता है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी आती है अफगानिस्तान के अंदर, फॉर्म होती है कम्युनिस्ट पार्टी, और अल्टीमेटली जाकर इस कम्युनिस्ट पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो ये लोग क्या करते हैं कि आई थिंक शायद 1978 के आसपास ये लोग दाऊद खान को हटा देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं एक प्रकार से 1978 में। और आपको याद होगा 1979 में सोवियत इन्वेड कर देता है। सोवियत इन्वेजन जो है वो 1979 के आसपास होता है, राइट। तो दाऊद खान क्या करता है, जो दाऊद खान के खिलाफ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी तख्ता पलट कर देती है। कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना होता है कि ये सही से शासन नहीं कर रहा था, हम यहाँ पर इक्वालिटी लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट रिजिम का देखोगे, जो थियरी बेसिस पर वो कहते हैं, उनका यही होता है कि हम इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, समाज में समानता लाई जाएगी, और एक प्रकार से जैसे लैंड रिफॉर्म हो गया, वो सारी चीजें लाने की कोशिश की जा रही थी। तो अब आपको यूं समझना है कि अफगानिस्तान में जब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएसएसआर के साथ होगा, क्योंकि यूएसएसआर अपने आप में आपको पता है जो है कम्युनिस्ट के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो यूएसएसआर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है। फिर क्या होता है कि लोगों को पसंद नहीं आता कुछ हद तक, जो अफगान के लोग हैं उनको लगता है ये क्या लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि थियरी बेसिस पर अगर आप देखो तो जो आइडियोलॉजी है वो काफी अच्छी लगती है कि समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल जब ये बेसिस पर आता है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगर एक पर्सन को दिखेगा कि मैं यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन से 2 गुना ज्यादा काम कर रहा हूँ लेकिन हमें पेमेंट सेम मिल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। तो यूएसएसआर पहले क्या कर रहा था, थोड़ा फाइनेंशियल मदद वगैरह कर रहा था वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को। लेकिन लोगों के अंदर विद्रोह होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो फाइनली क्या होता है कि इसी कारणवश जो सोवियत है, आप कह सकते हो कि 1979 में वो इन्वेड करना स्टार्ट कर देता है अफगानिस्तान के अंदर, इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो कारण बताया जाता है, देखिए कई सारे, एक तो जो मैंने आपको बताया, जो रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए थे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा जाहिर सी बात है अमेरिका और यूएस के बीच में, अमेरिका और जो यूएसएसआर है उनके बीच में जो भी कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन चल रहा था, वो लोग चाहते थे कि कौन सबसे ज्यादा कंट्रीज को कैप्चर कर सकता है। जो अपनी आइडियोलॉजी है, यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट की लाना चाहता था, अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट की लाना चाहता था। तो उस होड़ में यहाँ पर यूएसएसआर सोचता है कि हम अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेकर आएंगे। और इसका एक और कारण मैं बताता हूँ सोवियत इन्वेजन का, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होता है। मतलब सोवियत इसको एक्सेप्ट तो नहीं करता है, लेकिन माना जाता है काफी हद तक कि जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, जिसका नाम है ईरान। ईरान अगर आपको याद हो तो 1978 के आसपास वहां पर रेवोल्यूशन होता है, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं, ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से भी उसको जानते हैं। तो यूएसएसआर को डर था कि अगर वो ईरानियन रेवोल्यूशन अगर ये बहुत ज्यादा फैल गया तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी आ सकता है। तो कुछ हद तक उसको रोकने के लिए भी यूएसएसआर जो है वो इन्वेड कर देता है आपका अफगानिस्तान के अंदर। Yes, Neha, I could not agree more. I think it is very important for each and every citizen of any country out there to at least know and the geopolitics that their country is engaged in. All right, then. With that, we have come to the end of yet another episode of the IBSB Talk Show. Thank you, Mr. Ankit Agrawal, sir, for agreeing to come and talk to us. You have indeed given us a plethora of valuable insights with regards to the issue. Thank you, Sneha and Sakshi. I'm glad to be here at IBS Bangalore, and my best wishes to all of you students to prosper in life. आप जो भी कर रहे हैं, MBA, उसके बाद जो भी करिए, एक समाज के पर्सपेक्टिव से लेते हुए चलिए, एंड आई एम श्योर कि यू ऑल डू ग्रेट इन योर लाइफ। थैंक यू।
Sir, it was a very interesting and informative session. So, yes, and that being said, we wrap up the episode for the day. For such valuable and informative content, please follow Ankit Agarwal as well as our official IBS Bangalore talk show handle on Instagram, Twitter, and Facebook. All the requisite social media handles have been provided in the description of the podcast. Thank you, Ankit sir, once again for gracing us with your presence. Thank you. Thank you. This is your host, Sakshi. And co host Neha signing off.